अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? चलो, पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ रहे हो बताओ? फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखा वीडियो का? चलो, बहुत बढ़िया। तो क्या सिर्फ पढ़ रहे हो या याद भी कर रहे हो? देखते हैं कौन कितना याद किया है। ठीक है, 10 दिन पहले नोट्स मिले थे आपको। ठीक है, अब देखते हैं किस बच्चे ने कितना याद किया। कहा भी था कि कभी भी रैंडमली टेस्ट हो सकता है। ठीक है, चलो, तो पहले तो मैं ले लूँ हाथ में इसको, ताकि सवाल क्या पूछने हैं लगातार मुझे भी याद रहे, है ना, और मैं भी जो है सीक्वेंस भटकूँ नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके हम सीक्वेंस वाइज लगातार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस क्या करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपका जवाब देना है। इतना सिंपल सा काम करना। जिसको राइट आंसर पता है वो भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको पता नहीं है वो चुपचाप सुनेंगे बस। ठीक है, यस और नो? यस सर। ओके, तो पहला सवाल पूछता हूँ, ध्यान देना। लेंचोज होप, व्हाट वाज द होप ऑफ लेंचो? किसको याद? हाथ खड़े करो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। शाबाश। चलो, हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट वाज द होप ऑफ लेंचो? इसमें बोलो, पकड़ो इसको। ठीक है। Lencho hoped for a good rain. He hoped that good rain would give him a good harvest and his family would live happily for the whole year. वेरी गुड। ओके, अब मैं एक सवाल और पूछता हूँ, देखते हैं उसका जवाब आता नहीं आता। ठीक है, अगर आपने जवाब दिया तो ये जो पेन है ये आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, Why did the Lencho say that raindrops were like new coins? Because they were beneficial for good crop, the good crop would bring money and prosperity. Okay, that's very nice. Clap for her. And now, आपने 2 सवाल के जवाब दे दिए। अब एक सवाल और पूछता हूँ, देखते हैं इसका जवाब आता कि नहीं आता। Can you tell me the character of Lencho? Yes or no? Yes. Okay. Speak in that mic. Lencho is a poor farmer. He works in a farm. He is a believer of God. He thinks and believes that nobody dies of hunger. He is sure of getting help from God. His only mistake is to imagine that 70 pesos were sent by God and he does not know that it was sent by the post office employees. Lencho is a stupid person and also ignorant from the worldly ways. Also ignorant from the worldly ways. Can you tell me what is the meaning of ignorant? I-N-G-O. No. I am asking meaning, not spelling. Ignorant का मतलब क्या होता है? अनजान। अनजान। क्या होता है? अनजान। शाबाश, नीचे बैठो। Clap for her. Stand up once again. Stand up. Stand up, Alisha. Stand up. This is your reward. Okay? Thank you, sir. Sit down. Okay. Now I am going to ask the question of second chapter and tell me what is the name of second chapter? Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Okay, so जब मैंने ये पाठ पढ़ाया था तब डिस्कस किए थे खूब सारे सवाल आपसे। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। चलो, तो नेल्सन मंडेला, इसके सवाल कौन बता सकता है? हाथ खड़े करो पहले से ही। आप बताओगे? खड़े हो जाओ। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वाई वर 2 नेशनल एंथम संग? 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए? इसमें बोलो। There were sung to the national anthems. There were sung to the national anthems. There were to the white and the black. देखो सुनो आराम से, इजी हो जाओ, कोई डर की बात नहीं है, एकदम इजी होके। There were 2 races. There were 2 races, the white and the black. Each wanted to give respect to their national anthems, so there were sung to the national anthems. There were sung 2 national anthem for respect, to give respect for their national anthem. Very good. एक सवाल और पूछता हूँ,
Is National Mandela against the color discrimination? Yes or no? Yes, sir. Yes. So can you tell me why? Nelson Mandela long walk to freedom. Nelson Mandela. No. Mandela was against the. Nelson Mandela was against the discrimination of color and caste. He fought a long way against the system. Yes. He and his people sacrificed unimaginably. Unimaginably. Very good. Sabash. Clap for her. Okay, I am asking you a more question. Can you tell me practice of apartheid in South Africa? Can you tell? Yes, Okay, you can tell. Stand your backbone. There were two types of race there, the white and the black. The black suffered more due to color discrimination. The white people ruled South Africa and ensnared the freedom of the black native of the country. They had no rights and respect. If they tried to do something for their rights, they would send to prison and live a life of a slave. Live a life of a Slave. What's your name? Sanjana. Sanjana. And can you tell me the spellings of slave? Gulam. Spelling. S-L-A-V-E. SLAVE. Slave, which means gulam. Okay. Clap for Sanjana. This is for you. Thank you, sir. Sit down. ओके, थर्ड चैप्टर लेते हैं, फर्स्ट फ्लाइट. किसको याद है इसके जवाब? हाथ खड़े करो जिसको याद है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं. चलो इशिका, आप बताओगे? स्टैंड अप. थर्ड में 2 चैप्टर है. पहला कौन सा पूछू, ये बताओ. बताओगे इसके सारे सवाल? चलो. हाउ वाज द यंग सीगल फोर्स्ड टू फ्लाई? इस पे बोलो. रिलैक्स होके बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी. The young seagull was the young seagull was afraid to fly. He thought his little wings would not support him and he would fall into the sea. His family left him alone on the ledge. He was very angry then. His mother used a trick and came near him with a piece of fish. He was maddened with hunger and decided to snatch it from his mother. As he dived at the fish, he fell downwards. He was afraid, but at the last moment his wings was spread outwards. The wind rushed against with his breast feathers and he was starting flying. वेरी गुड. 1 मिनट रुको, 1 मिनट. नाउ आई एम आस्किंग यू वन मोर क्वेश्चन. कैन यू टेल मी द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म? कैन यू टेल मी दिस क्वेश्चन? ओके, स्पीक इन दैट माइक. Narrator experience. The narrator took the risk and flew his old Dakota plane in the storm. Suddenly everything became black. The aeroplane twisted in the air. His compass was not working. All instrument and radio stopped together. Yes. He could not make contact to the control room. He was frightened. Very good, Ishika. Clap for Ishika. Very good. That's very nice of you. This is your reward. Take it. Sit down. Very good. Okay. Now I am asking you the question of 4th chapter. Okay? And I am asking you only important question of that particular chapters. So my first question is from the diary of Anne Frank. From the diary of Anne Frank. Who is ready? Raise your hand. कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो जल्दी. 1 2 3. पूरा हाथ खड़े करो ऐसे जल्दी. ऐसा हाथ खड़े करो. शाबाश, वेरी गुड. तो 3 4 है बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं. चलो आप खड़े हो जाओ. व्हाट्स योर नेम? सुहाना. सुहाना, ये पकड़ो, माइक आपके पास आ रहा है. अपना नाम बोलो जोर से पहले एक बार. सुहाना. सुहाना. What do you know about Anne's life? What do you know about Anne's life? Can you tell me a complete summary of this chapter? Yes, sir. Yes or no? Yes. Say loudly. Her full name was. No, say loudly. जोर से बोलो. Yes, sir. Okay.
Her full name was Anneliese Marie. She was born on June 12, 1929. She was a German-born Jewish girl. She wrote her diary while she was hiding in Amsterdam during Second World War. She was an intelligent girl from her school time. She had good sense of humor. She was good writer. Unfortunately, she died of typhus in 1945. Her father found her diary. Her father found her diary and got it published. Her diary's name was Kitty. It was in Dutch language. It is an important document of daily life and condition of Jews under Nazi occupation. It is the work of insightful mind. Very good. Give me that mic. Okay. What's your name? Tell me again. Suhana. Clap for Suhana. Suhana, that is your reward. Take it and sit down. Okay. Now I am going to ask the question of baker from Goa. Baker from Goa. So who can tell me the answer of baker from Goa? Raise your hand. Raise your hand. Who can tell me? Nazmin, Shabnam, Ishika. Very good. Hassan, Nabi. Very good. Iram. Sorry. What's your name? Ifra. Ifra, stand up at your seat. I am asking you a question and let's see. Is bread making still popular in Goa? How do you know? Is it true or is it right? Speak in that mic if you know the answer. Bread making is still popular in Goa. They still have the mixers, the molders and those who bake loaves. Their furnaces has not yet been extinguished. The third of the traditional baker's bamboo can still be heard at some places. The baker comes twice in a day, morning and evening time. The children run to meet him for bread bangles. Very good. Okay, next question. पता है ऑथर ने एक लाइन बोली थी, वो लाइन ये थी, बेकर नेवर स्टार्व्ड, कि बेकर जो होते हैं कभी भूखे नहीं रहते या फिर भूखे नहीं मरते. इस लाइन का मतलब ये था. तो आप इसके बारे में क्या जानते हो ये हम सबको बताओ. थोड़ा नज़दीक आ जाओ ताकि मेरे को माइक का तार छोटा है ना, तो थोड़ा नज़दीक आ. यस, वेरी गुड. और इधर देखो सामने. चलो, वेरी गुड. Bread was essential part of daily life. Sweet dishes made of bread for marriage ceremonies, Christmas and other festivals. It was a profitable business, so the family of a baker never starved. Very good. Okay. Now I am asking you the question of Kurg. Okay. What is the chief characteristics of Kurg? Can you tell me? Okay. Speaking. The Kurg is on the south coast in India. It is the home to evergreen rainforests, spices and coffee plantation. During the monsoon it pours heavily. So many visitors do not come here during monsoon. September to March are the season of joy. The air is full of fragrance of coffee. Kurg also provides a number of sports here. Give it to me. एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, क्योंकि यही इस चैप्टर का एक हिस्सा और है. टी फ्रॉम आसाम, 7 चैप्टर का 3rd पार्ट, सी पार्ट. ठीक है, चलो. व्हाट इज़ द चाइनीज़ लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी? एक पता है कहानी पढ़ी थी अपने चाइनीज़ लेजेंड की, कि चाय की खोज कैसे हुई थी, तो उसको बोलना है. ठीक है, और थोड़ा माइक दूर पकड़ना है ऐसे. ठीक है.
It is said that a Chinese emperor used to drink boiled water. One day water was boiling, few leaves of the tea fell into the pot. When emperor drank, it was delicious and it was continued by the emperor. Very good. Okay, give it to me. One more question. How are the tea pluckers different from other laborers? Okay. Speak. The tea pluckers have to keep a bamboo basket on their back. They wear plastic aprons. They pluck newly sprouted leaves and drop them in their bamboo basket. Very good. What's your name? Ifra Anjum. Clap for Ifra Anjum. Ifra, this is your reward. Take it and sit down. Okay. Mizbil the otter. Who can tell the answer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. खड़ी हो मसरूर. मसरूर नाम आपका? चलो शाबाश. एक सवाल पूछता हूँ. Why was the otter name मैक्सवेल ऑटर? यानी जो ऑटर है इस कहानी में, जो उदबिलाव है, उसको मैक्सवेल का ऑटर क्यों कहा गया है? ऐसा क्या वजह है जिससे उसका नाम मैक्सवेल का ऑटर पड़ा है? बताओ. The otter was named Maxwell Otter because Maxwell took the otter from the London Zoological Society and called it Mizbil. Its race was not previously known to science. Maxwell introduced this to the zoologist Luthrogel perspicillata maxwelli otter. Sabash, very good. What game had Midge invented? We all know that जो ऑटर है उसका नाम क्या है? मिजबिल. और शॉर्ट में क्या कहा गया उसको? मिज. अब ये बताओ कि मिज ने जो है वो कौन सा गेम इन्वेंटेड किया है? बताओ. Miz was very intelligent and creative mammal. Mammal. Miz had invented the game of ping pong ball and a broken suitcase. Miz put the ball on the end of the suitcase and ran to catch it when it slid to the other end. Very good. That's very nice of you. Okay, I am asking you a last question. How does Miz spend his time? Miz spent his time by playing his own selection of toys, marbles, rubber fruit, ping pong balls and a terrapin shell. Miz loved to play in the water and once he even went to the bathroom and opened the tap on his own play in the water. Very good. Clap for Mashroor. This is your reward. Take Thank it you. and sit down. Sit down. Okay. Now I am asking the question of chapter 9. Madam rides the bus. The heroine of this chapter is Valli. Okay, and this is very interesting story of an 8 years old girl. रेडी हो सारे? चलो, कौन बताएगा ये? बताओ, हाथ खड़े करो जिसको इसका जवाब याद है. 1 2. पूरा हाथ खड़े क्यों नहीं करते हो भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आपका हाथ खड़ा है? नहीं है? चलो. हाँ, ले लो. ये हटा दो वहाँ से. हाँ, बाकी सुनो भाई, आगे ध्यान दो. आप खड़े हो जाओ. अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. मुझे ये बताओ कि वल्ली का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है वो क्या है? स्पीक इन दैट माइक. When the Valli saw the bus. When Valli saw the bus filled each time with a set of new passengers, it was a source of unending joy for her. Her wish was to ride the bus once. Very good. Okay, I am asking you another question. How did she find out the details of the bus journey? She collected the details about the journey. The 6 miles away from the village, the fare was 30 paise one way. It was a journey of 45 minutes. She listened carefully the conversation of the people who regularly used the bus. Very good. Why does the conductor call Valli as a madam?
The bus conductor was a jolly person. He called Valli madam because he guesses the temperament of Valli. She is just 8-year-old and speaking with a great confidence. She is behaving like a matured woman. Okay. And very good, Sabash. Last question पूछता हूँ आपसे मैं. Why does Valli stand up on the seat? What does she see then? Valli stood up on the seat because she could not see outside the bus. She saw palm trees, grassland, mountains, and the blue sky. She saw a white cow which was running in front of the bus. Very good. That's very nice of you. Clap for Masroor. Take it. This is your reward. Thank you. Okay, sit down. Now I am asking the question of our 10th chapter, the sermon at the Banaras. Who can tell? अतूफ़ा, इफ़रा, इरम, शाहजहाँ, वसीम, आप चारों. ठीक है. अतूफ़ा आप खड़े हो जाओ. चलो ये पकड़ो. प्रिंस सिद्धार्थ को प्रोटेक्टेड क्यों किया गया ये बताओ और बताना इंग्लिश में. Prince Siddharth was protected from the suffering of the world for 25 years. One day when he was on hunting, he saw a sick man. Then he saw an old man, then a funeral procession. At the end, he saw a monk begging for alms. All this made him sad, and he left his palace and family to search for eternal truth. Very good. Shabash. And what do you know about किस्सा गौतमी's dead son? आप किस्सा गौतमी के मरे हुए बेटे के बारे में क्या जानते हो और किस्सा गौतमी जो थी वो क्या चाहती थी महात्मा बुद्ध से, ये बताओ. Kissa Gautami went house to ask for the medicine to save her son's life. She did not get any medicine because no medicine can cure a dead person. At last the understood that the death is inevitable. If we want peace of mind, we should draw out arrow of the lamentation, complaint and grief. Lamentation, complaint and grief. Very good. क्या हो गया भाई, क्या गिरी? उठाओ उसको बेटा. हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना. चलो तो अतूफ़ा नाम है ना आपका. वेरी गुड अतूफ़ा. चलो क्लैप फॉर अतूफ़ा. टेक इट योर रिवॉर्ड एंड सिट डाउन. ओके. नाउ आई एम आस्किंग द 11th चैप्टर. द नेम इज़ द प्रपोजल, प्रस्ताव. छोटा सा एक प्ले है ये हमारी किताब के अंदर. 3 जो है इसमें कैरेक्टर है. एक जो है चुबुको, एक है नटालिया और एक कौन है बताओ? लोमो जो है कहानी का हीरो है एक तरह से, है ना. और हीरोइन कौन है? नटालिया. चलो तो ये चैप्टर जो है कौन बताएगा? शाबाश. 1 2 3 4 5 6. तुम्हारा हाथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हो भाई लड़कों? तुम पढ़ के नहीं आए क्या? शाबाश. वेरी गुड. हाँ नाजमीन खड़ो बेटा. बताओगे? थोड़ा सा इधर आ जाओ और ऐसे खड़ो जाओ. चलो ये पकड़ो माइक को, इस तरफ मुँह कर लो. वेरी गुड. बताओ हो गई. क्वेश्चन पूछता हूँ. वाई डज नतालिया आस्क हर फादर टू कॉल लोमो बैक? When Natalia comes to know that Lomo had come to propose to her, she becomes restless and asks her father to call Lomo back. It shows that she loves Lomo. Okay. और restless का मीन क्या होता है? बेचैनी. वेरी गुड. तो ये बताओ कि लोमो जो है वो नतालिया के घर पे क्यों आया है, उसकी आने की वजह क्या है, ये बताओ. Lomo had come to Chubuko's house to ask Natalia's hand in marriage. He did not propose Natalia and start talking about his oxen meadows which touched Chubuko's birthwoods. Natalia family said that oxen meadows belonged to Chubuko, not Lomo. Very good. Shabash. Clap for Nazmeen.
हाउ डज द प्ले एंड? Chubukos says to Lamau that his daughter wants to marry him, so he should hurry up and get married. Okay, that's very nice of you. Nazmeen, this is your reward. Sit down. Clap for Nazmeen once again. चलो, clap ढंग से करो भाई. वापस करो clap जल्दी. हाँ, बस. Stop. चलो, अब हम डिस्कस करते हैं सारी पोइम्स को. ठीक है? चलो. तो सबसे पहले बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो की, जो एक बहुत छोटी पोइम है. तो पोइम छोटी है तो इसके क्वेश्चन भी छोटे ही होंगे और जवाब भी क्या होंगे, सॉरी क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं लेकिन जवाब क्या होंगे, छोटे होंगे. चलो, द डस्ट ऑफ स्नो बड़ी सिंपल पोइम है. इसमें तुम सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए. ठीक है? चलो, तो पहला सवाल तुमसे पूछता हूँ पहले मैं. व्हाट फेल ओवर द पोइट, और इसी में एक सवाल और ऐड कर लो. व्हाट कॉज दी स्नो पार्टिकल फॉल, क्या वजह थी जिससे वो स्नो पार्टिकल गिरे. आपको आता है ये जवाब? वेरी गुड. आपको भी आता है? ठीक है, शाबाश. कुछ सवाल लड़कों से पूछ लेते हैं. ठीक है? लड़कों में कौन बताएगा? हाथ खड़े करो. आपका नाम क्या है? सूफियान. सूफियान खड़े हो बेटा. चलो, पकड़ो इसको. जवाब आता है आपको? पोइम कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो. पकड़ो. शाबाश. A crow was sitting on the hemlock tree, a poisonous tree. It soaks its feather and a shower of snow particles fell over the poet. The poet was sad and disappointed before, but the crow's act changed the mood. आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? कोई बात नहीं है ना, शाबाश. वापस खड़े हो जाओ. एक मिनट रुकना. अमीन सर, पेन नहीं रखे ना. ये वायर इतना लंबा है, क्या करें भाई. याकत, सूफियान, कम हियर. शाबाश, वेरी गुड. दिस इज योर रिवॉर्ड एंड सिट डाउन. क्लैप फॉर हिम. वेरी गुड. चलो, कुछ सवाल और पूछता हूँ तुमसे, देखते हैं किसको जवाब आता है. तैयारी तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी के हाथ खड़े हो जाए. ठीक है? चलो, अब सुनना ध्यान से अगला सवाल. हाउ विल द वर्ल्ड, नेक्स्ट पोइम पूछ रहा हूँ. ठीक है? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट पोइम, फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट. किसको याद है ये? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड. साइमा, आप बता पाओगे? स्टैंड अप. चलो, बताओ. हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट. स्पीक इन दैट माइक. थोड़ा सा नजदीक आ जाओ. बस, ठीक है. हाँ भाई, हाँ बेटा, बोलो. हमसे बोलो. स्पीक. The poet discusses two ways for the end of the world. The fire and ice describes. Speak loudly. Speak loudly. The poet discusses two ways for the end of the world. The fire and ice metaphor here. Fire describes greed and ice describes cold hatred. His experiences of human desires make him think like it. ये बताओ कि जो पोइम का सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? The poem shows that human beings keep unending desires and hate in their heart. This may bring about an end to this world. Very good. Clap for her. Take it. ये आपका रिवॉर्ड. Sit down. Very good. That's very nice of you. Okay. Now I am asking a tiger in the zoo. चलिए, तो क्वेश्चन पूछता हूँ मैं. चलो, ये बताओ कि टाइगर इन द जू जो है उसकी समरी कौन बताएगा? हाथ खड़े करो. जिसको थोड़ा बहुत याद है, चाहे 2 लाइन ही याद क्यों ना हो. चलो, कौन बताएगा? जिशान, आप बताओगे? सुभान बताएगा. चलो, 1 मिनट रुकना. हाँ, थोड़ा सा माइक. हाँ, खड़े हो आप. पकड़ो इसको और इसमें बोलो जोर से. The poet says that when a tiger put into a cage, it is unable to show its strength. The visitor see him and enjoy because they know
tiger cannot harm them. The man has limited to its strength behind the bar. It can only walk in the cage. Can walk only the Cage only in the cage. The tiger snarls around the houses. It shows its white fangs and its claws. Okay. It makes yes. आगे बोलो. it makes terrified the villagers. It makes terrified the Villagers. Okay, एक word है fangs. What is the meaning of fangs? Teeth. Teeth. Very good. Sit down. Take it. Clap for him. Okay. वापस आ जाता हूँ बीच में. थोड़ा ये नाज़मीन तार आगे लाओ. देखो पीछे चला गया तार है ना, थोड़ा इसको आगे पीछे से आगे ले लो इस तार को. हाँ वेरी गुड, चलो शाबाश. कमर सीधी करो अपनी वापस एक बार. कोई बात नहीं, खराब नहीं हुआ ये. चलो अगला चैप्टर पूछता हूँ तुमसे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल. चलो पहले तो ये बताओ कि कौन कौन से वाइल्ड एनिमल जो है वो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं. आप खड़े हो जाओ. हाँ, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल जो है इस चैप्टर में यूज़ हुए ये बताओ. लायन, टाइगर, हाइना. स्टॉप. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइना इन हिंदी? लकड़बग्गा. एक वाटर एनिमल है, कौन सा है? क्रोकोडाइल की स्पेलिंग बताओ. वेरी गुड. ओके, सिट डाउन. लड़कों से पूछते हैं सवाल. जिशान आप खड़े हो जाओ. ओके, पहले ये बताओ कि कौन कौन से जो है एनिमल इस पोइम के अंदर है. एक मिनट रुकना, वहाँ पे आ रहा हूँ मैं. The poetess tries to point out different ways in which we can identify wild animals. The wild animals mentioned in the poem are lion, tiger, bear, hyena, leopard, and chameleon. There is water wild animal is crocodile. Very good, sabash. Okay, so can you tell me a single quality of Asian lion? When we see a large and tawny beast coming toward us and rolling at us, it is Asian lion. Very good. Can you tell me a quality of bear? When a creature who hugs us tightly and certainly realize that is bear. Very good. And can you tell me a single quality of crocodile? A creature who sheds tears while swallowing a person. Swallowing a person. Very good. That's very nice of you. Clap for Jishan. Shabash. Jishan, take it. Stop. नीचे. हाँ, अगली पोइम है द बॉल पोइम. एक लड़का जिसकी गेंद खो जाती है और उस गेंद को खोने से वो क्या सीख जाता है भाई? सेंस ऑफ लॉसिंग, यानी किसी चीज़ को खोने का एक वो एक्सपीरियंस लेता है, उसका मतलब सीख जाता है. ठीक है, चलो. तो ये जो पोइम है वो फिर लड़कों से ही पूछूंगा मैं. चलो, बिलाल का हाथ खड़ा हो रहा है कि तुम्हें याद नहीं है भाई, तो हाथ तो खड़े करो. चलो, वेरी गुड. बिलाल आप खड़े हो जाओ. ओके, सो कैन यू टेल मी द समरी ऑफ दिस पोइम, कि उस बच्चे को बॉल के खोने पे क्या एक्सपीरियंस होता है, वो सारी बातें बता पाओगे? ओके, टेक दिस माइक. थोड़ा सा स्पीक. After losing the ball, the boy was shocked with sorrow. He felt sad. He started the way where his ball went. After losing the ball, the boy learns the nature of loss. He comes to know that everybody loses something in their life. He comes to know that everybody loses something in their life. Very good. Clap for Bilal. Bilal, खड़े रहना. एक मिनट रुको. This is your reward. Take it and sit down. Thank you. Okay. A very good poem, Amanda. और ये एक बैलाड था. क्या था ये? एक बैलाड था. और बैलाड का मतलब होता है गीत की तरह. जिस पोइम को हम गीत की तरह पढ़ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैलाड बोलते हैं. तो कौन बताएगा बैलाड?
अमांडा वाली पोइम। चलो इशिका, आपको याद है? वेरी गुड। आपको याद है? शाहजहां, शाबाश। हाँ चलो पूछते हैं, हसन से पूछ लेते हैं। हसन खड़े हो जाओ। हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट? यानी अमांडा को जो बिहेवियर, थोड़ा आगे उठा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अमांडा का जो बिहेवियर है इस पोएम के अंदर, वो थ्रू आउट द पोएम कैसा है? मतलब पूरी पोएम में उसका बिहेवियर कैसा है? थोड़ा आगे आ जाओ। ठीक है, स्टॉप स्पीकिंग। Amanda is a small girl. She is biting her nails. She is not sitting in a properly way. She is bending her body forward. The speaker asked to her to sit properly. The Amanda is told not to eat chocolate because she already has acne for her face. On her face. On her face. She. Why is Amanda told not to eat chocolate? इसका जवाब अब बताओ। Because she has already acne on her face. Yes. And वो क्या बनना चाहती है? वो कहाँ जाना चाहती है? Rapunzel and Mermaid. कहाँ जाना चाहती है? Rapunzel. She consider. Sea. हाँ sea और समुद्र. क्या बनना चाहती है वो? Rapunzel जल परी. रेपंजल अलग है और मरमेड अलग है। मरमेड यानी ठीक है। रेपंजल बन के वो कहाँ रहना चाहती है? टावर में। कहाँ रहना चाहती है? टावर में। हसन, वेरी गुड, शाबाश। क्लैप फॉर हसन। सिट डाउन। हाँ, द ट्री। नेक्स्ट पोएम इज द ट्री। हाथ खड़े करो जिसको आती है कोई। पूरा हाथ खड़े करो, ऐसे ऐसा हाथ खड़े करो, शाबाश, वेरी गुड। अब बता पाओगे? स्टैंड अप सुहाना। चलो ये बताओ कि जो कवि है हमारा पोइट, वो चांद को टूटा हुआ क्यों बोलता है? यानी सवाल ये है, वाई डज द पोइट से दैट द मून फुल व्यू ऑफ द मून इज ब्रोकन? बता पाओगे? स्पीक इन दैट माइंड। शिका, बंद करो इसको। The moon is like a broken because the full view of the moon is broken. The poet is watching the moon through the top twigs of the tallest oak. Top twigs of the tallest oak. एक वर्ड आया है oak। इस oak का मीनिंग क्या होता है? शाहबलूत का पेड़। शाहबलूत का पेड़। इसको हम आम भाषा में कहते हैं बलूत का पेड़ या फिर बड़ लो। क्या कहते हैं? बड़ लो। एक सवाल और पूछता हूँ, How are the trees compared to the patient? The long crank bough shuffle under the roof like newly discharged patients who are half dosed and going towards clinic door. Very good, shabash. Clap for Suhana. Suhana, take this from other hand. Thank you, sir. Very good, sit down. Okay, the very long poem of our course, the poem name is The Fog. सबसे बड़ी पोइम है ये। पोइम इतनी बड़ी है कि सिर्फ 2 लाइन में ये पोइम जो है ख़त्म हो जाती है ना? चलो, तो कौन सुना पाएगा ये पोइम? लियाकत, आप सुनाओगे? चलो, स्टैंड अप एट योर सीट। चलो, और हाउ इज़ द फॉग? थोड़ा तार इसको ढंग से करो, इसी अर्शी का तार यहाँ से ही करो इसको। और आपको सुना, तार का ध्यान रखना। चलो, हाउ इज़ द फॉग मेटाफराइज्ड इन द पोएम फॉग? यानी जो फॉग है उसको कैसे मेटाफराइज मतलब रूपक अलंकार के तौर पे कंपेयर किया, किससे? कैट से। तो कैसे किया बताओ? आगे थोड़ा आगे आ जाओ। Speak in that mic. The fog is compared with the cat and its action. The cat does. Mic पास में लो। शुरू से थोड़ा mic और नजदीक लो। The fog is compared. The fog is compared with the cat and its action. The cat does everything silently and swiftly.
In the same way, the fog is shown here. Swift, silent, and noiseless. Swift, silence and noiseless. And what is the meaning of swift here? Teji. तेजी या तेज. Very good. शाबाश. Stand up. Keep standing. Okay. Take this reward. Okay. हाँ, clap for him. Very good. शाबाश. Okay. A very interesting poem. This is the story of a dragon. Who can tell this summary of that poem? चलो 1 2 3 4 5 हैं. अरे ये तो इजी पोइम भाई, एकदम इजी. इसमें क्या हाथ को नीचे करके बैठो. शाबाश. वेरी गुड. चलो आप बताओगे क्या हो इरम, हंस क्यों रही है? चलो. द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन. साइमा स्टैंड अप. पहले ये बताओ कि इस पोइम में कौन कौन से कैरेक्टर है. टेक दैट माइक. Belinda, who is a girl. Ink, which is a kitten. Blink, which is a mouse. Mustard, which is a dog. Custard, which is a dragon, which was a coward dragon. Wagon, which is a car, which is color in red. अब मुझे बता दो हिंदी के अंदर हम बात करते हैं थोड़ी बहुत कि ड्रैगन का नाम क्या है? Custard. कस्टर्ड. जो किटन है इसके अंदर उसका नाम क्या है? Ink. इंक. जो डॉग है उसका नाम क्या है? Mustard. मस्टर्ड. वेरी गुड. अब देखो सामने. तो ये बताओ कि इज कस्टर्ड कावर्ड. अगर कस्टर्ड कावर्ड है पहले बताओ है कि नहीं है? नहीं है. नहीं है. वेरी गुड. शाबाश. नहीं है उसमें. चलो कस्टर्ड के बारे में क्या जानते हो सार बताओ. Custard is a coward dragon. He always cry for nice, safe cage. All other animals used to make fun of him. He has big sharp teeth. There are spikes on top of him. There are spikes on top of him. His toes are like. His mouth is like a fireplace and his nose is like a chimney. His toes are like real daggers. The dragon jumped up and snorted like an engine. He attacked at the pirate like a robin at a worm. Very good. Robin at the worm. Speak slowly. Okay. Clap for her. मैं उधर आता हूँ. अभी मैं गिर जाऊँगा नीचे इस माइक के चक्कर में और फिर वीडियो में इंसल्ट होगी मेरी, है ना. सिट डाउन. वेरी गुड. ओके. ये पकड़ो वापस आपका एक और इनाम. 2 बोलिए आपने. फिर जगह पकड़ो जाओ वापस. क्लैप फॉर हर वंस अगेन. सिट डाउन. ओके. द नेक्स्ट पोइम इज फॉर एन ग्रिगोरी या फिर ग्रीगरी. ठीक है, जो पढ़ना चाहे पढ़ लेना. स्पेलिंग क्या है? GREGORY. ग्रेगोरी. ठीक है. चलो तो किसको आती है? हाथ खड़े करो. कौन जवाब दे सकता है इसके? वेरी गुड. नबी आप खड़े हो जाओ. कंप्लीट समरी सुनाओ 4-5 लाइंस के अंदर बस. ठीक है कि एन कौन है, ग्रिगोरी कौन है, उसके बाद थोड़ा सा बता दो और इस पोइम में क्या चल रहा है. ठीक है. अगर गॉड ने डिस्क्रिमिनेट किया है तो क्यों किया है या फिर नहीं किया है वो सारा बताओ. थोड़ा आगे आ जाओ. The poet suggests us not to be. माइक और नज़दीक लो, और नज़दीक बस. The poet suggests us not to be attracted to physical beauty and good looks. It is temporary. The things which remain till long time are only and good qualities. Woman wants to look beautiful, so she uses hair dye of different colors. God does not discriminate anybody due to his color of hair, looks, voice, and way of walking. Very good. Clap for Nabi. अब एक पेन दो बेटा. एक 2 नहीं देना ना, 1 देना. नबी सिट डाउन. वेरी गुड. हाँ, अब जो है हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड बुक की तरफ. नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट. चलो, चैप्टर का नाम है द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी. कौन बता पाएगा? ठीक है, तो लड़कियों से पूछते हैं. आपकी बारी आई? नहीं आई?
चलो खड़े हो जाओ। क्या हो गई? कमर सीधी करो सारे एक बार जल्दी से। तुम्हें बेटा वीडियो बन रही है तो मज़ा आ रहा तुम्हें, है ना? चलो चलो मुझे ये बताओ कि जो कहानी का हमारा हीरो है वो कौन है? डॉक्टर हैरियट, वेरी गुड। और जो ट्रिकी एक डॉग है वो किसका है? मिसेस पंफ्रे का। तो मुझे ये बताओ कि मिसेस पंफ्रे को चिंता किस बात की? वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड? She was worried about giving. Speak slowly but loudly. धीरे बोलेंगे तो तेज से बोलेंगे। Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he looks energyless. She thinks that is just suffering from malnutrition. She was worried about giving best diet. Giving him best diet. एकदम सही बोला, क्यों घबरा रहे हो? एकदम परफेक्ट बोल रही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये बताओ कि डॉक्टर हैरियट जो कहानी का हीरो है उसका ट्रीटमेंट क्या किया उसने? बता पाओगे? Yes sir. Speak loudly. थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। Tricky was treated by Dr. Harriet without any medicines or surgery. He controlled the amount of food he ate and giving him plenty of water. He made him Tricky play and exercise with the other dogs in the surgery. Tricky gained his energy and sparked back once he was fed correct amount of food and give enough exercise. Very good. That's very nice of you. Give it to me back. Okay, शाहजहाँ, ये रहा आपका इनाम। शाहजहाँ के लिए क्लैप करो भाई। चलो, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। और चोर कौन है? बताओ सारे एक साथ। और चोर को सुधार कौन रहा है? धीरे। अनिल की उम्र क्या है? और हरी सिंह की उम्र क्या है? चलो, तो कौन बताएगा चैप्टर ये वाला? मतलब किसको जवाब याद है? फर्स्ट लाइन से पूछते हैं। आप खड़े जाओ। तबस्सुम नाम है आपका? ठीक है, स्टैंड अप। ओके, एक कहानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, नाम है हरी सिंह। क्या नाम है? हनी सिंह नहीं, ध्यान रखना हो। हाँ, नाम क्या है उसका? हरी सिंह। इधर आओ, इधर मुँह करना, ऐसे इधर मुँह करना, शाबाश भाई। अरे बस भाई, चलो सवाल पूछे? यस सर। तो सबसे पहले ये बताओ कि हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच या फिर हरी सिंह का कैरेक्टर कैसा है, ये बताओ। He is a young boy of 15. He is an experienced thief and fairly successful hand. He found Anil as his best victim. He knows how to flatter and make friends. He takes a new name every month so that the police and his former employers might not catch him. It kept him ahead to them. Very good. That's very nice of you. चलिए ये बताओ कि अनिल जो है, why अनिल was most trusting person for Hari Singh? Hari Singh thinks that Anil is a careless person. He kept an unknown person as his servant and gave him the keys of the house. Very good. चलो, very good, शाबाश। ये बताओ कि हरी सिंह जो है एज अ थीफ कैसा है? हरी सिंह एज अ थीफ, सुनना सवाल समझ लो पहले। हरी सिंह एज अ थीफ यानी हरी सिंह ने जो है पैसे चुराए, कितने चुराए, जब चुरा लिए तो उसका मन कैसा हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो सारी बातें बतानी। बताओ। Hari Singh stole the money 600 rupees and reached to railway station to run away, but he could not do it because the kindness of Anil. Anil's kindness changed a thief into a good human. Very good, शाबाश। Clap for Tabassum. Tabassum, take this and sit down. Very good. Okay, the third chapter is the midnight visitor. Okay, चलो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आप खड़े हो जाओ, नहीं आप खड़े हो जाओ, शाबाश। ओके, कहानी में 3 कैरेक्टर है। पहला बताओ ऑजेबल, सेकंड फॉलर। फॉलर कौन है? फॉलर है जर्नलिस्ट, वेरी गुड। और मैक्स कौन है? सीक्रेट एजेंट। चलो, तो अब मुझे बताओ कि आप ऑजेबल के बारे में क्या जानते हो
और ऑजिबल जो है वो क्या है, कैसा है, कितनी भाषाएं बोलता है, सारी बातें बताओगे। माइक पहुंच जाएगा वहाँ तक, थोड़ा ध्यान से ना, इसी तो According to Fowler, Ozable does not fit in the role of a secret agent. He is fat, his accent is not good, he looks like a common man. Ozable knows German and French language. ओके, चलो मुझे ये बताओ कि जो हमारा दूसरा स्पाई है इसका नाम क्या है? मैक्स। तो ऑजिबल जो डिटेक्टिव है वो मैक्स से पीछा छुड़वाता कैसे है? हाउ डज द ऑजिबल गेट रिड ऑफ फ्रॉम मैक्स? Ozable had great presence of mind. He immediately made a story of balcony and assures him that there is a balcony. Max went there, jumped without looking outside the window. Outside the window. He jumped without looking outside the window. Without, लड़कियाँ बोलो साथ में. Without He jumped without outside, without looking outside the window. Very good. Give it to Max. वापस दो मुझे. पेन दो भी. नजराना, एम आई राइट? क्लैप फॉर नजराना. टेक दिस पेन. वेरी गुड. सिट डाउन. अपनी कमर सीधी करो भाई सारे. हाँ, चलो. नेक्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. विश्वास का प्रश्न या फिर भरोसे का प्रश्न. कौन बताएगा? चलो शाबाश. नाज़मीन आप खड़े हो जाओ. आपका नंबर आया एक बार आ गया. चलो कोई बात नहीं, एक बार बताओ. वाई डिड हॉरेस रोप सेफ? हॉरेस जो था हमारा कहानी का, हॉरेस डैनबी. नाम क्या था? हॉरेस डैनबी. सही बोल रहा हूँ मैं? चलो, जो है वो सेफ क्यों चुराता है या फिर सेफ की रॉबरी क्यों करता है? ऐसे घूम जाओ. Horace Denby loves rare and expensive books. He robbed a safe every year to buy books. He could not afford expensive books, so he became a thief. He could not afford the expensive book, so he became thief. क्योंकि वो expensive book जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता था, इसलिए क्या बन गया वो? चोर. देखो चोर है भाई, लेकिन पढ़ने का शौक है. सुना, अच्छा चोर है. सुना, ऐसे नहीं कि भाई चोरी की और जाके दारू पी लिया है ना, शराब पी ली. अच्छा चोर है भाई, पढ़ने के लिए चुरा रहा था, है ना? क्या सही कर रहा है ये? चोरी किसी भी हालत में क्या होती है? गलत. चोरी ही होती है. तो ये सही नहीं कर रहा है. ठीक है, चलो आगे बताओ. चलो ये बताओ कि जब वो चोरी करने घर में पहुंचा तो एक लेडी थी वहाँ पर, है ना, जिसने लाल कलर की एक ड्रेस पहनी थी. वो कौन थी उसके बारे में बताओ. Horace Denby finds a young lady. She was pretty and dressed in red. Horace Denby considered her the lady of the house. The lady was very clever. She asks Horace Denby to break the safe so that she can take out jewels because she had lost the keys of the safe. Actually, the lady was a thief who tricked him. He gets very angry when someone talks about honor among thieves. Honor among thieves. इसकी हिंदी बताओ. वो क्या थी? चोर. Honor among thieves. चोर का ईमान होता है ना. जब कोई बात करता है कि चोर भी जो है चोर के घर पे चोरी नहीं करते, बड़ा गुस्सा आता है उसको, क्योंकि उसको किसने लूट लिया? एक चोर ने ही चोर को लूट लिया. हम देखते हैं ना फिल्मों में, तो डायलॉग आता है फिल्मों के अंदर कि भाई चोर जो है चोर के घर पे चोरी नहीं करता. नाज़मीन स्टैंड अप. गिव अ पेन फॉर नाज़मीन. स्टैंड अप. क्लैप फॉर नाज़मीन. सिट डाउन. वेरी गुड. चलो एक तुमसे पूछता हूँ. अगला चैप्टर जो हमारी किताब का नाम भी है, फुटप्रिंट विदाउट फीट. चलो बताना किसको पूछूं, याद खड़े करो. कौन बताएगा? आप बताओगे? खड़े हो जाओ. इस कहानी का हीरो कौन है? ग्रिफिन कौन है? साइंटिस्ट. आराम से रिलैक्स होके बोलो, कोई डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कौन है? साइंटिस्ट. जोर से बोलो. साइंटिस्ट. बस एकदम इजी हो गया. अब सुनना ध्यान से. एक सवाल पूछूं? ठीक है, चलो पूछते हैं. चलो ये बताओ कि ग्रिफिन है कौन, उसके बारे में बता दो. ग्रिफिन के बारे में He was a brilliant scientist who discovered how to. लंबी सांस लो पहले.
छोड़ो, ठीक है, अब बोलो, आराम से बोलो. He discovered brilliant scientist how discovered how to invisible scientist. He discovered how to invisible. He swallowed some race ducks, so his body become us transparent as sheet of a glass. He was lawless percent and a homeless wanderer without clothes, food and manicured visible. Very good, shabash. Clap for her. Sit down. Ruko, wait. Give a pen. Take it. Okay, sit down. Very good. Clap for her. Clap for her. Chalo. The making of a scientist. जो रिकॉर्डिंग कर रहा है कैमरामैन, उसको पता है, उसको सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं ना अपन. तो ऐसा करो, सुभान आप जाओ इसकी जगह पर और कैमरामैन आप नीचे आओ और इसको फोकस करो, इसके ऊपर है हमारा कैमरामैन, इसको दिखाओ जान से पहले. आप कुछ सवाल इससे पूछते हैं, ठीक है. इससे सिर्फ एक सवाल पूछें क्योंकि कैमरा संभाल रहा है हमारा, और साथ साथ में पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो क्लास के अंदर, शाबाश. चलो ये बताओ कि जो ग्रिफिन है वो साइंटिस्ट, सॉरी ग्रिफिन नहीं, वो एब्राइट है ना, इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, जल्दी इस तरफ आ जाओ, जल्दी आ जाओ. हाँ पकड़ो इसको. हाउ डज ही बिकम साइंटिस्ट? हु एब्राइट, ठीक है. तो वैज्ञानिक लड़कियाँ, वो जो है वो साइंटिस्ट कैसे बना, बताओ. A bright mother always encouraged him interest learning. She took him grips. She taught him microscope, telescope, cameras, and other equipments. These things help him becoming a scientist. Theory. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. थ्योरी. चलिए बताओ कि उस एब्राइट का नाम जो ना उसको मम्मी लेती थी, वो नाम क्या था? रिची. क्या नाम था? रिची. और एब्राइट ने क्या किया है? उसने किस जानवर पे, सॉरी उसने किस इंसेक्ट पर रिसर्च की है? बटरफ्लाई कॉपी मोनार्स. बटरफ्लाई पे उसने क्या की है? रिसर्च की. उसने ये पता लगाया कि जो बटरफ्लाई होती है वो किसकी कॉपी करती है? मोनार्स की कॉपी का. मोनार्स मतलब क्या है? बटरफ्लाई के जो था ना, जिसको तितलियों का रानी या फिर राजा बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोनार्च कहते हैं, ठीक है. देखो वैसे मोनार्च जो शब्द है वो किसके लिए? सम्राट के लिए यूज़ है, राजा के लिए यूज़ करते हैं अपन. ओके, वेट. क्लैप फॉर समीर. ओके, क्लैप फॉर समीर. ओके, आप नीचे बैठो वापस. तो अब कोई भेदभाव नहीं हुआ है. जो कैमरामैन हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको भी हमने सवाल पूछ लिए हैं. कमर सीधी करो वापस. बस 2-3 चैप्टर बचे हैं, इसके बाद फिनिश करते हैं इस वीडियो को. एक चैप्टर है द नेकलेस. क्या नाम है? नेकलेस, है ना. चलो ये बताओ कि इस कहानी में कितने इफ्रा आप खड़े हो जाओ. कहानी में कौन कौन है बताओ? मटिल्डा और मिस्टर लुइजल, मैडम जॉर्ज रेपोनू. वेरी गुड. और जिसका हार लिया था वो कौन था? मैम फॉरेस्टर. क्या नाम था? चलो ये बताओ, नाज़मीन खड़े हो जाओ. हार किसका खो गया था? मटिल्डा. किसके पास से लेके आई थी? फॉरेस्टर के पास. किसके घर से इनविटेशन आया था पार्टी का? मैडम जॉर्ज रेपोनू. क्या ऐसा ही बोल रही है? चलो ये बताओ कि वो जो हार था जो खो गया था उसकी कीमत कितनी थी? किसको बता करो? खड़ो हो कायनात, बोलो आप. 36,000 फ्रांक्स या फिर फ्रैंक्स उसकी कीमत थी. तो उसकी कीमत कैसे अदा की गई?
किसको पता है? उसकी कीमत बताओ कायनात, बताओगे? For repay their debt, they changed their house. The diamond necklace cost is 36,000 francs. Mr. Loisel had only 18,000 francs left by his father. They loaned the rest and bought a diamond necklace. वेरी गुड, बड़ा शानदार क्लैपिंग करो इसके लिए। लाओ भाई, कायनात टेक इट, सिट डाउन। नाजमीन यू कैन सिट, इफ्रा यू कैन सिट। चलो एक सवाल फिर से पूछता हूँ, चलो ये बताओ बेटा, तार सही करो उसको, पहले आगे लाओ इस तार को, है ना, खड़ी हो के ले, खड़ी हो के, हाँ शाबाश, वेरी गुड, हो गया। चलो चलो ये बताओ कि व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ़ मटिल्डा कन्फेसेस, क्या होता यदि जो है मटिल्डा वो कन्फेस कर लेती? किसको पता, आंकड़े करो, बताओ, बता पाओगे? चलो फिर से बताओगे, चलो बताओ, एक इनाम हो लेगी तो, है ना। If Matilda confessed her friend that she had lost the diamond necklace, she had not ruined. Her friend would tell her that it was not an original diamond necklace. Matilda would pay its cost and saved herself from heavy debt. Saved herself from the Heavy debt. क्या बोलोगे इसको? Give a pen. ओके, टेक दिस, क्लैपिंग करो इसके लिए फिर से, क्या वो, हाँ चलो ये बताओ, चैप्टर नंबर 8, नाम है भोली, ठीक है। चलो ये बताओ कि भोली के पापा का नाम क्या है? सब बताओ एक साथ। कितने बच्चे हैं रामलाल जी के? 7 बच्चे। 4 क्या है? बेटे। और 3 क्या है? इस पाठ में बेटों के नाम तो नहीं आए, बेटियों के नाम आए। उन बेटी में से एक नाम है बोली, बोली क्या ना, हाँ सुलेखा भी है। उनमें से एक जो है ना, जो थोड़ी सी स्टूपिड टाइप की है, वो कौन है? इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या है? डिस्कस कर ले मैं इसको। चलो भाई, तो देखते हैं कौन बताएगा। आप बताओगे, पहले से हाथ खड़ा करते हो, चलो खड़ो। चलो ये बताओ कि भोली के पापा इतने चिंतित क्यों हैं? इसको पकड़ो पहले। Ramlal has 7 children, all of them except to the Bholi. Bholi are good looking. Bholi has neither good looks and nor intelligence, and stood too. She stammers too. So Bholi's father worried about marriage of Bholi. So, क्योंकि वो हकलाती है ना, उसके चेहरे पे क्या है? पॉप मार्क्स है। जब वो बचपन में छोटी थी, तब वो क्या हो गई थी? पलंग से नीचे गिर गई। इसलिए क्या, उसके सिर पे चोट लग गई, थोड़ी सी क्या हो गई, वो भोली रह गई। क्या रह गई? तो ना पागल नहीं हुई, वो थोड़ा सा क्या दिमाग का कम काम करता है ना, भोली हो गई। कैसी हो गई? भोली। पहले वो शानी थी, अब क्या हो गई? भोली। चलो ओके, कैरेक्टर बताओ भोली का। Bholi ka character. Bholi's real name is Sulekha. She was not intelligent, and her looks was and she was neither good looks and nor intelligence. She stammered too. She is neglected for her family by her. और बताओ, her luck take a sharp turn. She gets a chance to get education. She gained self-confidence, self-respect to
बोली ट्रांसफॉर्म इनटू सुलेखा। बोली चेंज किस में हो गई भाई? सुलेखा में। बोली बन गई सुलेखा। जब उसको मौका मिला पढ़ने का, स्कूल गई, तब उसकी टीचर ने उसकी हेल्प की और उसने क्या किया? स्टैमरिंग करना भी छोड़ दिया। और अब जो बोली थी वास्तव में क्या हो गई? वो सुलेखा बन गई। चलो ये बताओ कि कौन आया था गांव में बोली को स्कूल भिजवाने के लिए? किसको पता है आंसर? तहसीलदार। कौन आया था? तहसीलदार। वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। टेक दिस पेन एंड सिट डाउन। वेरी गुड। ओके, द लास्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। चलो देखते हैं। शबनम बारी आई आपकी? नहीं आई? चलो खड़ो जाओ। शबनम ना, शबनम नहीं, शबनम। सबसे पहले ये बताओ कि इस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं, उनके नाम बताओ। टेक दिस माइक। थिंक टैंक, कैप्टर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, नूडल, अप्रेंटाइस, कैप्टन ओमेगा, आयोटा, लेफ्टिनेंट, और ऊप था क्या? लेफ्टिनेंट आयोटा। लेफ्टिनेंट आयोटा। और ऊप था सर्जेंट है ना? सर्जेंट नहीं, सार्जेंट। पता है एक फौज में होता है, कोई किसी देश की फौज में एक पद होता है, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट, कैप्टन। पता है आपको? कैप्टन, मेजर, है ना? इस तरह के पद होते हैं ना सेना में। yes. तो अब सुने ना, मंगलवासी अटैक क्या कर रहे हैं? और सुना, ये कहानी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर में, और इस कहानी के हिसाब से अटैक कब हो चुका है? 2040 में हो चुका है। ठीक है? चलो, तो अब सवाल पूछता हूँ तुमसे। 20वीं शताब्दी को यानी 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा गया, सही बात है? Yes, sir. क्यों कहा गया बताओ? The 20th century was called the era of the book because in those days there were books about everything. Books taught people how to and when to and where to and why to. The people how the books were to medium of knowledge. They illustrated, punctuated, and even decorated things a strangest thing a book ever did was to save the earth. वेरी गुड, शाबाश, एकदम परफेक्ट जवाब दिया आपने। चलो अब ये बताओ कि थिंक टैंक ने उस बुक को डिस्क्राइब कैसे किया जो बुक कैप्टन ओमेगा ने और आयोटा ने हाथ में ली थी और उस वीडियो कैमरे में दिखाई थी, जिससे वो थिंक टैंक देख सका और नूडल भी देख सका। Think tank describes the book as a sandwich, that two slices of bread with a kind of filling between them. Think tank tells Captain Omega eats sandwich. At last, Oop eats it. It is dry in taste. वेरी गुड। चलो अब ये बताओ कि मार्शियन इन्वेजन यानी मंगलवार से जो आक्रमण किया उसके बारे में क्या जानते? There was Martian invasion of 2014. This invasion never really happened because a single book stopped it. And what was the name of that book? What was the name of the book? Mother Goose. Mother Goose. Very good. Continue. Think tank considers. Think tank considers Merton handsome and more intelligent. Earthling are ugly and less intelligent because he have tiny heads. शाबाश, very good. Okay, give it to me. इस चैप्टर के अंदर नीचे बैठो, एक मिनट रुकना, वापस खड़े हो जाओ, सॉरी। क्लैप फॉर शबनम। इस चैप्टर में क्या है देखो, सुना 3-4 सवाल और ख़ास इंपॉर्टेंट सुन लेना। पहला जो क्या है वो नूडल का कैरेक्टर स्केच, ठीक है, और एक आ सकता है थिंक टैंक का कैरेक्टर स्केच, ठीक है, एक सवाल ये वाला, और एक सवाल इसमें बन सकता है कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक क्यों कहते हैं। तो सुनो देखो, 3 खास सवाल आपको ये पढ़ने ढंग से, ठीक है। बस हो गया पूरा रिवीजन आपका, दोनों बुक का, फर्स्ट स्लाइड का और फुटप्रिंट विदाउट फीड का। चलो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, ग्रामर के चैप्टर शुरू करेंगे, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इस तरह के टॉपिक जो तुम्हारे कोर्स में है 5 टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन टैग भी है, और एक टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि कॉन्कर्ड, उसको भी डिस्कस हम अगली क्लासेस में
करेंगे। एग्ज़ाम कब पता है आपका? तारीख बताओ। तैयारी चल रही है? शाबाश। तो मिलते हैं कल।